Okay. So, before we start this session, please answer a few questions. Number one. So, prior to IBC, were there any provisions relating to voluntary liquidation? Prior to IBC, because IBC came in December 2016 only. But prior to that, where were the provisions of voluntary liquidation contained? In which Company Act, sir. Companies Act, Companies Act, sir. Companies Act. Okay, very correct. Now, when IBC came, changes were made to various acts, including Companies Act. So, by virtue of which act of IBC, changes were effected in Companies Act? This is the second question. So, repeat it. As we know, prior to IBC, provisions relating to liquidation and voluntary liquidation were contained in Companies Act. But when IBC came, certain changes were made in the various acts, including Companies Act. So my question is, by virtue of which section changes were made in the Companies Act in IBC? This is my question. I hope I'm clear. Section 59 of IBC? Ajay? Section 59 of IBC? No. Section 59 is different. 59 contains the provisions. But what I mean to say, there was a section, let me make it more clear. So there was a section which was allotted to changes for the acts, like Income Tax Act changes by virtue of particular section. Similarly, Partnership Act, Excise Act. Similarly, there was a section awarded specifically to changes made in Companies Act. Now, what is that section? This is my question. And hint is, this section is contained in the last of IBC. Last. Section 2. Last section of IBC. More clear hint. 240. 255. Right. 255. So 255. Okay. They can ask you a question like this also. I thought of this question today only. Let me ask students this question. Now another question. As you know, there have been changes recently in the voluntary liquidation regulations. Are you aware? Sir. Recently, there have been changes which have been made to voluntary liquidation provisions. And one of the changes is in the declaration by the directors or partners. Now, my question is, because there has been no change in the Act. There is no change in the Act itself. There is no change in Section 59. There is no change in IBC since August 2021. Now, provisions. Now, let me stop here and let me take you to Section 59. Okay. Then we'll ask the question. So, this is Section 59. I hope it is visible on your screen. Yes, sir. Okay. So now, Prabhakar ji, please read this section. What is this section? And then I'll ask my question. Just a minute. ये क्या जूम नहीं हो रहा क्या? कंट्रोल प्लस. चलिए कोई बात नहीं, बड़ा ही है काफी. हाँ ठीक है. I hope now it is more visible. Yes, please. Section 59. Sudhakar ji, please read this. Yes, sir. Voluntary liquidation of corporate person, Section 59. Right. A corporate person who intends to liquidate itself voluntarily and has not committed any default may initiate voluntary liquidation proceedings under the provisions of this chapter. Subsection 2. The voluntary liquidation of a corporate person under subsection 1 shall meet such conditions and procedural requirements as may be specified by the board. Regulation 3 to 41. Subsection 3. Without prejudice to subsection 2, voluntary liquidation proceedings of a corporate person registered as a company shall meet the following conditions, namely A declaration from majority of the directors of the company verified by an affidavit stating that
they have made a full inquiry into the affairs of the company, and they have formed an opinion that either the company has no debt or that it will be able to repay its debt, sir. Yes, please. It will be repay its debts in full form, in full from the proceeds of the assets to be sold in the voluntary liquidation, and the company is not being liquidated to defraud any person. B. The declaration under subclause A shall be accompanied with the following documents, namely: 1. Audited financial statements and record of business operations of the company for the previous or for the period. Now, let us stop here. Whichever is later. Yes. So, Sudhakar ji, let us Yes. stop here. Yes, sir. So, the first point is that a declaration has to be made. Correct. Now, tell me, what is the definition of corporate person as per this section, section 59? A company, a limited liability partnership, a partnership. Company, LLP, any other thing? No, sir, this is written No, sir. corporate person registered as a company as per this section. No. Actually, that is written in 59.3. So 59.3, if we see, it says without prejudice to subsection 2. And subsection 2 says that requirements are given in regulations. So, Okay. regarding subsection 3, so this registered as a company applies to only subsection 3. Okay, sir. But regarding the requirements, procedural requirements, they are given in regulation 3 to 41. So here, number 1, corporate person, 59.1. If we read 59.1, so it includes company as well as LLP or any other body corp. So these are the things included. Now, what I want to stress upon here is there is a change in the regulations. There is no change in the act. So the format of declaration here, you will find it different from the form of declaration which is given in the regulations. Because what it says if you are registered as a company, then you will meet these conditions, right? Made a full inquiry, then company is not being liquidated to defraud any person, right? Now, let us see the related regulations also before we read further, right? So these are the regulations. In regulations, regulation number 3. So what it says? Regulation number 3. Prabhakar ji, please read this. Yes, sir. Sudhakar, yes, sir. Initiation of liquidation. Without prejudice to section 59.2, liquidation proceedings of a corporate person shall meet the following conditions, namely, a declaration from majority of the designated partners if a corporate person is a limited liability partnership, individuals constituting the governing body in case of other corporate persons. Now let us stop here. Yes, sir. Now, in regulation number 3.1, what is the meaning of corporate person? Because it is clarified. Yes, sir. It is clarified here in the regulations. So what it says? For the purpose of sub-regulation 1 to 3. Now it is saying like this. Last line you read. For the purpose of, I hope now last line is clear to you. For the purposes of sub-regulations 1 to 3. Corporate person means a corporate person other than a company. So, the section refers to company and the regulations refer to other classes of corporate persons, say LLP or body corporate. Now, why this came? This came because initially they forgot to include LLP, etc. So they were thinking on because the actually provisions were straight away lifted from the Companies Act. Then their
it was a mention of the Companies Act only. So they introduced it later, this concept. I hope now this point is clear. So corporate person, so if they ask you a question, corporate person as per section 59 subsection 3 includes both company as well LLP, company only, and he may frame questions like this. ठीक है, तो 59(3) अगर हम पढ़े कंपनी, 59(1) बोथ, 59(2) बोथ कंपनी LLP बॉडी कॉर्पोरेट, 59(3) सिर्फ कंपनी, और यहां रेगुलेशंस में कॉर्पोरेट पर्सन अदर देन ए कंपनी. ठीक है. नाउ यू सी दिस डिक्लेरेशन. What is this declaration? Now read this declaration, please. Yes, Sudhakar ji. Sudhakar ji? Or any other person? I am here, sir. I am here. Yes, sir. yes. Ye wala. You want me to read the Right, as the case may be. as Verified the- by an affidavit stating that. verified by an affidavit stating that one, they have made a full inquiry into the affairs of the corporate person, and they have formed an opinion that either the corporate person has no debt or that it will be able to pay its debts in full from the proceeds of assets to be sold in the liquidation. The corporate person is not being liquidated to defraud any person, and the corporate person has made sufficient provision to meet the obligations arising on account of pending matters mentioned in subclause 3 of clause B. The declaration of subclause A shall be accompanied with the following documents, namely, audited financial statements and record of business operations of the corporate person for the previous 2 years or for the period since its incorporation, whichever is later. A report of the valuation of the assets of the corporate person, if any, prepared by a registered valuer. Disclosure about pending proceedings or assessments before statutory authorities and pending litigations in respect of the corporate person. So let us stop here. Now, so you will notice that there is a difference in the declaration. What is the difference? We have read the declaration as per section 59 also. Let us again go to that. ठीक है, 59 में क्या बोल रहा है? 59 में बोलता है it is not, दो पॉइंट्स हैं. क्या? पहला, it will be able to pay its debts in full. Second, it is not being liquidated to defraud any person. ठीक है. अब यहां पर क्या डिक्लेरेशन बोल रहा है? यहां डिक्लेरेशन क्या है? फ्यूचर में राइज होने में. थर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया ना. कॉर्पोरेट पर्सन हैज मेड सफिशिएंट प्रोविजन. Yes, sir. है ना. ये पॉइंट आपको एक्ट में नहीं है. अब मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ यू आर वॉलंटरीली लिक्विडेटिंग ए कंपनी, तो ये वाला थर्ड पॉइंट आप इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे? करेंगे सर. सर करना हाँ? करेंगे. करेंगे. Yes, जी. sir. तो लॉजिक क्या है Sir. भाई? यहां पर तो वो कॉर्पोरेट पर्सन अदर देन कंपनी की बात कर रहा. जब आप एफिडेविट बनाओगे तो कंपनी का एफिडेविट बनाओगे. कंपनी के एफिडेविट में 3 पॉइंट दोगे या 2 पॉइंट दोगे? तो कंपनी का एफिडेविट में दिखा देता हूं आपको. कंपनी का क्या एफिडेविट है? दे हैव मेड फुल इंक्वायरी एंड द कंपनी नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफरॉड एनी पर्सन. बस, फुल स्टॉप. दो ही चीजें थी. और यहां पर क्या दे दिया? यहां एक और कहानी दे दी. मेरा पॉइंट समझ रहे ना आप? Yes, sir. है. यहां एक और दे दिया. द कॉर्पोरेट पर्सन हैज मेड सफिशिएंट प्रोविजन टू मीट द ऑब्लिगेशंस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ पेंडिंग मैटर्स मेंशन्ड इन सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज बी. तो आप बताइए, आपका डिक्लेरेशन, मेरे हिसाब से तो डिक्लेरेशन चेंज हो जाएगा. कंपनी में डिफरेंट रहेगा, यहां डिफरेंट रहेगा. क्यों?
नहीं तो लॉजिक दीजिए ना कोई क्या है। here is it referring to it because of the point of other corporate person, sir? नहीं वो ठीक है, तो कंपनी में क्या नहीं करना है क्या प्रोविजन? करना है कंपनी में। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर किसी कंपनी का चेक बाउंसिंग का केस लगा हुआ है और यही कंपनी अगर वॉलंटरी नहीं लिक्विडेशन नहीं में नहीं, नहीं वो नहीं, मेरे को तो सेक्शन में से ही बताओ defraud the creditor. है। If I am not making a sufficient provision, then indirectly I am defrauding the creditors. नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मेरा पॉइंट आप समझे नहीं। मेरा पॉइंट क्या है, यहाँ जो डिक्लेरेशन है सेक्शन 59 में, यहाँ 2 पॉइंट दे रहा है, रेगुलेशन में दे रहा है 3 पॉइंट। रेगुलेशन क्या रहा है, अदर देन कंपनी को लगेगा, ये कंपनी को लगेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप कंपनी का वॉलंटरी लिक्विडेशन करोगे तो उसके एफिडेविट में 2 पॉइंट डालोगे 3? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। तो मेरा ख्याल से 3 पॉइंट आना चाहिए सर। 3 पॉइंट आएगा, वेरी करेक्ट। और उसका मैं रीजन भी बताता हूं। उसका रीजन है रेगुलेशन नंबर 3 to 41 एज में बी स्पेसिफाइड 59(2) में इसका आंसर है। 59(2) क्या बोल रहा है, वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ ए कॉर्पोरेट पर्सन। अब देखो यहां पर इसने कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन नहीं दी है 59(1) में, तो 59(1) में जो कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन है वो आपको सेक्शन 3 या सेक्शन 5 जहां पर भी दी हुई वहां से लेनी है, ठीक है। और रेगुलेशंस में क्या किया इन्होंने, रेगुलेशंस में कॉर्पोरेट पर्सन को बता दिया अदर देन ए कंपनी, ठीक है। तो लॉजिक यहां पर है, रेगुलेशन 59(2) में है लॉजिक इसका। क्यों 59(2) में क्या बताया कि जो भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं एज में बी स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड मतलब रेगुलेशंस, रेगुलेशन में चेंज कर दिया, हो गया, ठीक है जी। यस सर। चलिए तीसरा, अब इससे आपको यह भी याद रहेगा कि वो रेगुलेशन में चेंज आ गया। अब चलते हैं आगे, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के साथ में क्या करना है आपको, 59 हम अब भी पढ़ रहे हैं, द डिक्लेरेशन। पढ़िए पढ़िए प्रभाकर जी। Yes, sir. The declaration under subclass A shall be accompanied with the following documents, namely audited financial statements and record of business operations of the company for the previous 2 years or for the period since it's incorporated, whichever is later. A report of the valuation of the assets of the company, if any, prepared with the registered value. हियर नाउ हियर इफ एनी, इफ एनी का मतलब क्या है, मतलब ये रिपोर्ट तैयार करना जरूरी है या जरूरी नहीं है? If any मतलब जरूरी नहीं है सर। नहीं सर, जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है। जरूरी है। वो इन्वेस्टमेंट्स क्या की कह रहा है, वो वैल्यूएशन ये कह रहा है अगर कोई एसेट्स हैं कंपनी के तो जरूरी, अगर एसेट्स ही नहीं है तो जरूरी नहीं है। राइट, ऐसा भी हो सकता है ना, देयर कुड बी, ये इफ एनी को आपको एसेट्स ऑफ द कंपनी के साथ मिला करके पढ़ना है, ओके। नॉट विद इफ एनी प्रिपेयर्ड, मतलब अगर तैयार है तो दे दो, ऐसा मतलब नहीं है यहाँ। इसका मतलब ये है कि इफ देर आर एसेट्स, ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है ना, देर आर नो एसेट्स इन द कंपनी, है ना। राइट सर। तो अगर कोई एसेट्स ही नहीं है तो फिर वैल्यूएशन का जरूरत नहीं। भाई बहुत बार क्या होता है, सिर्फ आपका कैश एंड बैंक बैलेंस होता है, उसका तो वैल्यूएशन का जरूरत नहीं है ना। और उसके अलावा सिर्फ लॉसेस होते हैं, तो उस केस में वैल्यूएशन रिपोर्ट का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एसेट्स ही नहीं है कंपनी के पास। भाई कैश इन हैंड है आपका, उसका थोड़ी वैल्यूएशन करवाओगे, राइट सर। है ना। तो ये मतलब, यस सर। चलिए अगला, चलिए Yes, sir. Within 4 weeks of a declaration, the अभी declaration. अभी दोबारा एक बार रुक जाते हैं। अब यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर हम इसका रेगुलेशंस वाला पोर्शन भी पढ़ते हैं। इसमें 2 पॉइंट आ गए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट ऑफ द वैल्यूएशन। अब रेगुलेशंस में क्या लिखा, रेगुलेशन में लिखा ये, यहां पर फिर दोबारा 3 पॉइंट दे दिए, है ना। Yes, sir. डिस्क्लोजर। यहां पर ये जो है क्या दे दिया, डिस्क्लोजर अबाउट पेंडिंग Pending प्रोसीडिंग्स proceedings. और असेसमेंट्स बिफोर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड पेंडिंग लिटिगेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। अब यहां पर तो दे दिया ये पॉइंट, सेक्शन में तो है नहीं, है ना। Sir, लेकिन that is also because it is an act only which the parliament can make amendments. हाँ हाँ Regulations the board can specify. हाँ, इसीलिए अब इसने क्या regulations किया, कर रहे हैं। इनडायरेक्टली कोड को अमेंड कर दिया। Yes, sir. Indirectly amend कर रहे हैं। Yes, sir. हाँ,
अब कोई सन की होगा तो चैलेंज कर सकता है इस चीज को कि भाई इनडायरेक्टली यू आर अमेंडिंग द एक्ट, तो डिस्क्लोजर अबाउट, लेकिन उसमें भी वो फिर बच जाएगा। 59(2) में लिख दिया ना उन्होंने, 59(2) में लिख दिया, इसमें भी स्पेसिफाइड बोलेगा, हमने रेगुलेशन में स्पेसिफाई कर दिया है ना। तो डिस्क्लोजर अबाउट पेंडिंग प्रोसीडिंग्स और असेसमेंट्स बिफोर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड पेंडिंग लिटिगेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट। Corporate persons. Corporate person. अच्छा, एक और सवाल बता दीजिए, आप वॉलंटरी लिक्विडेशन किस किस ने पढ़ा है अभी तक? किस किस ने पढ़ लिया वॉलंटरी लिक्विडेशन? Yes, sir. I have read, sir. आपने पढ़ लिया? Yes, sir. अच्छा, तो एक बात मुझे बताओ, एक कंपनी है जिसका वॉलंटरी लिक्विडेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, वॉलंटरी लिक्विडेशन कंप्लीट हो गया Right, sir. और डिसोल्यूशन भी हो गया। अब कंपनी को कुछ पैसा मिल गया, कोई कोर्ट केस चल रहा था कंपनी का, कंपनी को पैसा मिल गया, तो वो पैसा किसके पास जाएगा? The court case चल रहा है, sir. हाँ, कोर्ट केस तो चल सकता है ना। हाँ. So in कोर्ट which केस में case, क्या कहता है वो? कोर्ट केस में ये कहता है, देखो सबसे पहली बात, नंबर 1, whether voluntary liquidation can start, whether voluntary liquidation can commence if litigation is pending, the answer is yes, है ना। हो सकता है voluntary liquidation स्टार्ट, yes, sir. ये provision यहाँ है, sir. यहाँ तो लिखा ही है कि भाई जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग है वो बता दो, है ना। सिमिलरली अब जब लिक्विडेशन, आपका लिटिगेशन चल रहा है, तो वॉलंटरी लिक्विडेशन हो सकता है खत्म हो गया हो आपका, लेकिन लिटिगेशन खत्म नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है ना। हाँ Yes, sir. जी। तो अगर लिटिगेशन खत्म नहीं हुआ और बाद में वो लिटिगेशन खत्म हुआ और उसमें कुछ पैसे मिल गए कंपनी को, हो सकता है ना कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, तो Yes, वो sir. पैसा किसके पास जाएगा? जिसने वॉलंटरी लिक्विडेशन पढ़ा है वो बताओ। मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट होता है, उसमें जाता है पैसा। है जी। डायरेक्टर्स के पास Corporate जाएगा। account में अरे नहीं register नहीं होता नहीं, है. अरे सर जी, वो तो तब, वो तो अगर कुछ बच गया, किसी का क्लेम बच गया तो वो जाता है। अच्छा, ये नहीं जाता। डायरेक्टर्स को मिलेगा। सर शेयर होल्डर वाटरफॉल मैकेनिज्म के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर। है जी। वाटरफॉल मैकेनिज्म है ना, सेक्शन 53। वाटरफॉल कहाँ से हो गया सर? वाटरफॉल तो, वो तो लिक्विडेशन में, वॉलंटरी लिक्विडेशन में थोड़ी वाटरफॉल चलता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। 53 वो वहां चलता ही नहीं, वो वहां खत्म हो गया 53, अब तो 59 पे पहुंच गए हम। अच्छा सर शेयर होल्डर को जाएगा? बिल्कुल ठीक है। देखिए ऐसा है, क्योंकि ये डिक्लेरेशन क्या देते हैं लास्ट में, ये कह देते हैं, ये लास्ट में भी एक डिक्लेरेशन देते हैं, जैसे शुरू में डिक्लेरेशन दिया ना, ऐसा ही डिक्लेरेशन एक लास्ट में भी है। तो लास्ट में कौन से सेक्शन में डिक्लेरेशन है भाई, ये बता दीजिए, लास्ट में कौन से सेक्शन में लिक्विडेशन है, ये डिक्लेरेशन है, होता है ना जब क्लोजर हो रहा है तो। 59(3) में है। एक मिनट, यहां बता दीजिए। 59(3) में नहीं, इसकी बात कर 34, रेगुलेशन। sir. ये 38 आपका रेगुलेशन जो है ना, इसका आंसर देगा। वो तो फाइनल रिपोर्ट हुआ ना जी। तो फाइनल रिपोर्ट जब वॉलंटरी लिक्विडेशन खत्म हो गया तभी तो होगा। ओके, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? नो लिटिगेशन इज पेंडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट पर्सन और सफिशिएंट प्रोविजन हैज बीन मेड टू मीट द ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम एनी पेंडिंग लिटिगेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दे आर एनविसेजिंग अ सिचुएशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन हैज बीन कंप्लीटेड बट स्टिल देयर इज पेंडिंग लिटिगेशन। तो वो ये कहता है कि भाई उसके लिए सफिशिएंट प्रोविजन कर दिया है। अब ये सफिशिएंट प्रोविजन का क्या मतलब है? Sufficient provision here means that the directors will pay out of their pocket, या they will retain some money before distributing it। ठीक है, sufficient provision, क्योंकि यहां पर क्या है, provision has been made। provision का मतलब ये पैसा आप चाहे वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट में रखो, वॉलंटरी कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट में, है कि नहीं। ये तो हो गया अगर देना है तो, अगर लेना है तो मेरा क्वेश्चन रिवर्स है। वॉलंटरी लिक्विडेशन कंप्लीट हो गया, बाद में कुछ पैसा मिल गया, तब तो है ना? शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो नेचुरली दैट मनी बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स को तो पहले ही पेमेंट हो चुका है।
कुछ है ना। चलिए अब दोबारा 59 पर चलते हैं। ये थोड़े कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे माइंड में आए, मैं क्या आपसे डिस्कस कर लूं, बहुत अच्छा सर, ये तो पॉइंट्स क्लियर होते हैं। है ना। हाँ, और ये क्या मैं सोचता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा कि भाई यह क्या नया भी तो कुछ होना चाहिए, तो ये दो चार क्वेश्चन मेरे माइंड में आए थे आज, तो मैं कहा ये पूछूंगा स्टूडेंट से। चलिए, डिक्लेरेशन अंडर सब क्लॉज ए तो शैल थोड़ा बी बड़ा कंप्लीट कीजिए विद सर। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, नेमली, पढ़िए सुधाकर जी। थोड़ा बड़ा कीजिए सर। हाँ बड़ा, हाँ हाँ जी, हाँ। ऑडिट ये टू ये तो टू हो ही गया, ये हो गया है ना। नाउ हाँ सी पॉइंट पढ़ लीजिए, विद इन 4 वीक्स। बी पॉइंट तो हो गया ना, हाँ यस सर। नाउ सी। Yes. हाँ Within 4 weeks of a declaration, within 4 weeks of a declaration under subclause A, there shall be a special resolution of the members of the company in a general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily and appointing an insolvency professional to act as the liquidator, or a resolution of the members of the company in a general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily as a result of expiry of the period of its duration, if any, fixed by its articles, or on the occurrence of any event in respect of which the articles provide that the company shall be dissolved, as the case may be, and appointing an insolvency professional to act as the liquidator. now there are two types of resolution here. One is special resolution, second is resolution. So resolution, it means ordinary resolution. अगर सिर्फ वर्ड रेजोल्यूशन लिखा है इसका मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, Ordinary. और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा है तो स्पेशल। ठीक, मतलब सर वोटिंग शेयर फॉर रेजोल्यूशन 51, स्पेशल रेजोल्यूशन 66% होता सर। 66 नहीं 75, 75. कंपनी 75 एक्ट के हिसाब से चलना हाँ है ना। स्पेशल ऑलरेडी रेजोल्यूशन 75 आपका कंपनी एक्ट में डिफाइंड है ना। यस सर। स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी in a general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily and appointing an insolvency professional to act as the liquidator। अब देखिए क्या कर रहा है, पहले कह रहा है कि डिक्लेरेशन दे दीजिए, है ना, उसके बाद में एफिडेविट दे दीजिए, और फिर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लीजिए। तो यहां जो अपॉइंटमेंट है, कौन अपॉइंट कर रहा है? The appointment of the liquidator is being made by whom? By the board sir. बाय द बोर्ड। By The the corporate members. debtor। Members. corporate debtor कंपनी है ना बेसिकली। Yeah, company Corporate debtor here is members of the company sir. हाँ appointing the liquidator। Now who has the power to remove the liquidator? अगर रिमूव करना होगा तो किसके पास पावर है? Members of the company. Members ही हैं सर, जिसने Right. अपॉइंट किया। हाँ, वो फिर आगे वर्ड कॉर्पोरेट डेटर लिख दिया उसने, बिकॉज कॉर्पोरेट डेटर एंड मेंबर वो एक ही बात है ना। इट इज डीम टू बी डन बाय द कॉर्पोरेट डेटर, क्योंकि मेंबर जो भी पास रेजोल्यूशन कर रहे हैं कंपनी के बिहाफ पर ही कर रहे हैं ना, है ना। सेकंड हो गया रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी ने जनरल मीटिंग। तो व्हाट इज द सिचुएशन एनविसेज्ड हियर? इसमें कौन सी सिचुएशन है जिसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा? Sometimes companies are formed for a specific duration, or they are formed for a specific purpose. Suppose a company is executing a project. So now what they do is they form a special purpose vehicle so that assets and liabilities belonging to that project and litigations, if any, are restricted to that project only, है ना। वो पूरी कंपनी में इन्फेक्शन न फैल जाए। मान लो किसी प्रोजेक्ट में कोई लिटिगेशन हो गया तो उसी कंपनी पर ही होगा ना लिटिगेशन, इस तरह से वो करते हैं। और कई बार क्या होता है, टेंडरिंग के टाइम पर भी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, कंपनी के अलावा कंपनी एलएलपी मिक्स करके एक नई कंपनी बना लेते हैं, है ना। बहुत सारे केसेस में भी आप देखोगे तो उस केस में क्या होता है कि वो कहते हैं भाई जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा हम कंपनी वाइंड अप कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उस केस में क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगी, ठीक है, और अपॉइंटमेंट। अब एक और सवाल है कि मान लीजिए उस कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि भैया 31 दिसंबर 2024 को ये कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है।
तो उस केस में ये रेजोल्यूशन कब पास करना है, डिसॉल्व होने के बाद या पहले? पहले पास करना सर। पहले करना पास। हाँ ठीक है, क्योंकि डिसॉल्व हो गई तो बात ही खत्म हो गई फिर तो, है ना। तो ये क्या कहता है कि अगर कंपनी में ये लिखा हुआ है कि इट विल बी डिसॉल्व, क्योंकि यहां सिचुएशन क्या है, देखो वॉलंटरी लिक्विडेशन एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो विदाउट रीडिंग द प्रीवियस सेक्शंस। इससे पहले वाले सेक्शन को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसमें देखो कोई डिफॉल्ट नहीं है ना। डेट भी हो सकता है ना ही हो कंपनी में, ऐसा भी हो सकता है डेट फ्री कंपनी में, तो डेट भी कोई जरूरी नहीं है, डिफॉल्ट भी कोई जरूरी नहीं है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी कोई जरूरी नहीं है, कोई सीओसी भी जरूरी नहीं है ना। तो जो पीछे हम इतना पढ़ के आए हैं उसको पढ़े बिना भी इस सेक्शन को समझ सकते हो आप। एक ही सेक्शन है वॉलंटरी लिक्विडेशन, ओनली वन सेक्शन 59, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी ओज एनी डेट टू एनी पर्सन, creditors representing 2/3 in value of the debt of the company shall approve the resolution passed under subclause C within 7 days of such resolution। ठीक, अब लिखा है कि अगर डेट है तो creditors representing 2/3 in value of the debt of the company shall approve the resolution passed under subclause C within 7 days। तो क्या 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 काम करना हो गया? सबसे पहले क्या हुआ? डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन फ्रॉम मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी ऑर्डिनरी है स्पेशल है? पहला जो मेजॉरिटी है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी है, वेरी करेक्ट, क्योंकि अगर स्पेशल होता तो स्पेशल लिखता। ठीक है, ये ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50%। 50%। ठीक है, they have made a full inquiry and they have formed an opinion that the company has no debt or that will be able to pay its debts in full and the company is not being liquidated to defraud any person। ठीक, डिक्लेरेशन के साथ में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा दी, रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन लगा दी, और विद इन 4 वीक्स ऑफ डिक्लेरेशन एक स्पेशल रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन पास कर ली। और अगर क्रेडिटर है तो 2/3 इन वैल्यू जो है दे शैल अप्रूव द रेजोल्यूशन पास्ड अंडर सबसेक्शन सब क्लॉज 3 विद इन 7 डेज ऑफ सच रेजोल्यूशन। ये कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर रहे, समझ रहे हो आप? ये क्या कर रहे हैं, जो रेजोल्यूशन पास की गई है उसी को अप्रूव कर रहे हैं। ये दोनों में फर्क है ना। वरना ये लिख देते भाई क्रेडिटर्स भी रेजोल्यूशन पास करेंगे, क्या क्रेडिटर रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं? नहीं, दे आर अप्रूविंग द रेजोल्यूशन। और अगर मान लो क्रेडिटर अप्रूव नहीं करे तो क्या होगा? फिर वॉलंटरी लिक्विडेशन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है ना। द कंपनी शैल नोटिफाई द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड द बोर्ड। दो को इन्फॉर्म करना है, किसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और बोर्ड को। तो ए को इन्फॉर्म करना है नहीं करना? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नहीं करना सर, नहीं करना। अभी तक हम जितने सेक्शन पढ़ने के आए उसमें तो ए ही सब कुछ बना हुआ था, है ना। उसको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दो, प्रोग्रेस रिपोर्ट दो, ये करो वो करो। यहां कुछ बताना भी नहीं है कि वॉलंटरी लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया, है ना। यस सर। चलिए, अबाउट द रेजोल्यूशन अंडर सब सेक्शन 3 टू लिक्विडेट द कंपनी विद इन 7 डेज ऑफ सच रेजोल्यूशन और द सब्सिक्वेंट अप्रूवल बाय द क्रेडिटर्स एज द केस में बी। ठीक है, तो कितने दिन में बताना है? 7 डेज ऑफ सच रेजोल्यूशन और सब्सिक्वेंट अप्रूवल बाय द क्रेडिटर्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, subject to approval of the creditors under subsection 3 the voluntary liquidation proceedings in respect of a company shall be deemed to have commenced। deemed to have commenced है मतलब डीमिंग फिक्शन है। क्या डीमिंग फिक्शन है? फ्रॉम द रेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन अंडर सब क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 3। मतलब जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ उसी डेट से वॉलंटरी लिक्विडेशन शुरू हो गया। वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट क्या है? डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। अब यहां कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, कई लोग क्या कहते हैं कि भाई जो क्रेडिटर्स ने अप्रूव किया वो होगा वॉलंटरी लिक्विडेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। लिखा है, क्लियरली लिखा, डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन अंडर सब क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 3। तो सब क्लॉज सी देख लीजिए, सब क्लॉज सी क्या है? वही है,
ठीक है, shareholders का क्योंकि हाँ, और क्योंकि अगर क्रेडिटर्स अप्रूव नहीं करेंगे फिर तो शुरू ही नहीं होगा ना वॉलेंटरी लिक्विडेशन, फिर तो वही प्रोसेस खत्म। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35 to 53 of chapter 3 and chapter 7 shall apply to voluntary liquidation proceedings for corporate persons with such modifications as may be necessary। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या कह दिया, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35 to 53। अरे भाई लिक्विडेशन तो स्टार्ट हो रहा है 33 से, ये स्टार्ट कर रहा है 35 से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 33 और 34 अप्लाई नहीं होंगे। नहीं होगा। ठीक है, तो 33 में क्या बात करता है, 33 में कुछ मॉरिटोरियम की बात करता है ना, कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 52 नो प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड फलाना ढिमकाना। यहां पर ऐसा कोई बार नहीं है, तो 33 34 भी यहां पर अप्लाई नहीं हो रहे। 35 to 53 ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, वेयर द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन हैव बीन कंप्लीटली वाउंड अप, ठीक है, and its assets completely liquidated, the liquidator shall make an application to the adjudicating authority। जब पूरी कहानी खत्म हो गई तब adjudicating authority को बता रहे हैं for the dissolution, मतलब डिसोल्यूशन के लिए उसके पास पहुंच गए। ठीक है, the adjudicating authority shall on an application filed by the liquidator under subsection 7 pass an order that the corporate debtor shall be dissolved from the date of that order and the corporate debtor shall be dissolved accordingly। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, ये गोइंग कंसर्न हम सुनते थे, तो क्या वॉलेंट्री लिक्विडेशन में भी गोइंग कंसर्न चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा, वेरी करेक्ट, क्योंकि Because वॉलेंट्री it is लिक्विडेशन voluntary में तो liquidation। पर्पज ही खत्म करना है ना, कंपनी को चलाना थोड़ी है। वॉलेंट्री लिक्विडेशन में तो डिसॉल्व ही होगी कंपनी। ठीक है, इसमें क्लोजर वाला प्रोसेस जैसे लिक्विडेशन में होता ना कि डिसोल्यूशन भी हो सकता है और क्लोजर ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस भी हो सकता है, तो वॉलेंट्री लिक्विडेशन में ऐसी कोई बात है ही नहीं। ठीक है, ए कॉपी ऑफ एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 8 शैल विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर बी फॉरवर्डेड टू द अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट पर्सन इज रजिस्टर्ड। ठीक है, तो सेक्शन 59 खत्म, वॉलेंट्री लिक्विडेशन खत्म हो गया हमारा। अब रेगुलेशंस देख लेते हैं, रेगुलेशंस में क्या कहता है। रेगुलेशंस में ये थर्ड रेगुलेशन हमने पढ़ लिया था, और यहां पर भी क्या है, विद इन 4 weeks ऑफ डिक्लेरेशन क्या करना है, रेजोल्यूशन पास बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स। यहां क्या लिख दिया, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, और कंट्रीब्यूटरीज इन द केस में भी रिक्वायरिंग द कॉर्पोरेट पर्सन टू बी लिक्विडेटेड। अब देखो, ये स्पेशल रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, कोई फर्क है या दोनों सेम ही बातें? मेरा क्वेश्चन समझ गए ना आप? भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी और रेजोल्यूशन पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ एलएलपी, दोनों एक ही बात है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कंपनी के केस में क्या है, वहां 75। कैपिटल के हिसाब से है, यहाँ कैपिटल नहीं है, यहाँ नंबर के हिसाब से है। एलएलपी में कैपिटल वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, एलएलपी में नंबर, स्पेशल मेजोरिटी मतलब 3/4। ठीक है, तो यहाँ 3/4 आपको नंबर देखने हैं, उनकी कैपिटल नहीं देखनी। एक और बात, यहां पर क्या लिखा है, पार्टनर्स, मतलब टोटल पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं लिखा, ये ध्यान में रखना। अगर हम प्री पैक देखें तो प्री पैक में वर्ड लिखा डेजिग्नेटेड पार्टनर, यहां लिखा वर्ड पार्टनर, ये भी ध्यान में रखना है हमारे। ठीक है, और कंट्रीब्यूटरीज इन द केस में भी ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन और रेजोल्यूशन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द कंट्रीब्यूटरीज, अगर उनको लगता है भाई अगर उसमें एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद डिसॉल्व होनी है तो फिर उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चलेगी। ठीक है, और अगर इफ इट ओज एनी डेट, क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू शैल अप्रूव द रेजोल्यूशन। ठीक है, ये हमने सेक्शन में भी पढ़ लिया, और यहां पर भी रजिस्ट्रार और बोर्ड को भी बता दिया टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट पर्सन विद इन 7 days। ठीक है, और डीम टू हैव कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। ठीक है, कॉर्पोरेट पर्सन हियर मींस कॉर्पोरेट पर्सन अदर देन ए कंपनी। यहां तक तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब
The declaration under sub regulation 1A or under section 59(3)A shall list. ये जो डिक्लेरेशन आप दे रहे हो उसमें क्या देना है आपको? एक लिस्ट बनानी है डेट्स की एज ऑन दैट डेट एंड स्टेट दैट द कॉर्पोरेट पर्सन will be able to pay all its debts in full from the proceeds of assets to be sold in liquidation. ठीक है. डिक्लेरेशन सबसे पहले, डिक्लेरेशन में लिस्ट ऑफ डेट्स आ रही है और कौन सी डेट है वो? जो जिस डेट को डिक्लेरेशन हो रहा है. अब आपसे ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन है और जो वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट है, दे आर सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है, क्योंकि डिक्लेरेशन के बाद तो एफिडेविट बनेगा, एफिडेविट के बाद स्पेशल रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन पास होगा, क्रेडिटर्स है तो वो भी अप्रूव करेंगे, उसके बाद में फिर जो डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन है वो आपकी वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट आएगी. डिक्लेरेशन तो बहुत पहले हो गया उस, है ना. और डिक्लेरेशन कितनों ने देना है? मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी? मेजोरिटी. Effect of liquidation. The corporate person shall, from the liquidation commencement date, cease to carry on its business. क्या लिख दिया? Shall cease to carry on its business, except as far as required for the beneficial winding up of its business. एक ध्यान रखना इसमें, यहां पर क्या लिखा? यहां गोइंग कंसर्न वाली बात नहीं लिखी. अगर आप इसी से कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन लिक्विडेशन में पढ़ोगे तो वहां क्या लिखा है? Unless it is decided to be run as a going concern, लिखा ना उसमें लिक्विडेशन में. यहां ऐसी बात नहीं लिखी, यहां गोइंग कंसर्न का कोई फंडा ही नहीं है. Notwithstanding the provisions of subsection 1, the corporate person shall continue to exist until it is dissolved. तो वो तो नेचुरली है ना भाई, जब तक डिसॉल्व नहीं होता तब तक कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. ये के लिए यहां गोइंग कंसर्न की कॉन्सेप्ट नहीं है. अभी तक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का नाम सुना हमने? नहीं सर. कोई नाम नहीं नहीं आया, सर. है ना. अब Only during appointment the of, final, after the final report, sir. हाँ, appointment and remuneration of liquidator. Appointment of liquidator subject to regulation 6, the corporate person shall appoint an insolvency professional as liquidator and wherever required may replace him. ठीक है, तो कौन अपॉइंट कर रहा है? कॉर्पोरेट पर्सन. कॉर्पोरेट पर्सन. ठीक है, वही अपॉइंट कर रहा है और जब जरूरत होगी तो वही रिप्लेस कर देगा. ठीक है, by appointing another insolvency professional by a resolution passed under clause C of subsection 3 of section 59. मतलब वही रेजोल्यूशन जो उस टाइम पास की थी, चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ठीक है, ऑर्डिनरी अगर फिक्स्ड पीरियड ड्यूरेशन की कंपनी है तो फिर ऑर्डिनरी, अदरवाइज स्पेशल. और क्लॉज सी ऑफ सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 3. ठीक है, क्लियर है. तो जो रेजोल्यूशन अपॉइंटमेंट के टाइम पे पास की थी वही रेजोल्यूशन आपको रिप्लेसमेंट के टाइम पर पास करनी है. Provide that such resolution shall contain the terms and conditions of appointment of the liquidator, including the remuneration payable to him. The insolvency professional shall, within 7 days of his appointment as liquidator, intimate the board about such appointment. ठीक है, तो इसने किसको इन्फॉर्म करना है? बोर्ड को. यहां पर भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नहीं बताया. पर हमने एक डिक्लेरेशन में पॉइंट पढ़ा था कि दिस कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन. पढ़ा था ना. हाँ जी. अगर मान लो लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया और लिक्विडेटर को लगता है कि भैया दिस वॉलंटरी लिक्विडेशन इज बीइंग डन टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, तो वो क्या करेगा? Then he will intimate to the adjudicating authority. Right. In that situation, he will intimate the adjudicating authority कि भैया ये तो गड़बड़ जाला कर रहे हैं, इनका वॉलंटरी लिक्विडेशन का पर्पस डिफ्रॉडिंग है. ठीक है. एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज लिक्विडेटर. क्या एलिजिबिलिटी है? An insolvency professional shall be eligible to be appointed as a liquidator if he and every partner or director of the IPE of which he is a partner or director is independent of the corporate person. ठीक है, वो खुद और वो जिस IPE का पार्टनर है उसके पार्टनर, सारे पार्टनर और डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, मतलब रिलेटेड नहीं है. इंडिपेंडेंट कब माने जाएंगे?
eligible to be appointed as not a related party of the CD, not an employee or proprietor or partner. ठीक है, तो ये भी इन द लास्ट 3 years बार बार हम ये चीज पढ़ चुके हैं, सब में यही चीज है. ठीक है. सर मेरा एक क्वेश्चन है इसमें हाँ जी. कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अगर एम्प्लॉयड हो किसी एंटिटी के साथ, हाँ, तो क्या वो नहीं बन पाएगा लिक्विडेटर? मैं क्वेश्चन रिपीट करूं? हाँ, नहीं मैं समझ गया आपका क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन ये है, एक आईपीई है, ठीक है, उस आईपीई का एक एम्प्लॉई है ना. एम्प्लॉय है, बिल्कुल. हाँ, तो वो जो एम्प्लॉई है वो अब वो क्या बनना चाहता है? लिक्विडेटर. लिक्विडेटर बनना चाहता है. हम्म. ठीक है, तो आईपीई का लिक्विडेटर से, आईपीई का कोई सीडी से कनेक्शन है या नहीं है? क्वेश्चन तो यहां पर आएगा ना. आईपीई का भाई वो हाँ जी. क्या इंडिपेंडेंस मांग रहा है? इंडिपेंडेंस मांग रहा है कॉर्पोरेट पर्सन से. हाँ जी, बिल्कुल. तो अगर कॉर्पोरेट पर्सन से वो एम्प्लॉय रिलेटेड है तो नहीं अपॉइंट हो सकता. अगर रिलेटेड नहीं है तो नहीं हो. तो शायद इनका क्वेश्चन ये था कि कॉर्पोरेट पर्सन में ही एम्प्लॉयड है जी. इनका क्वेश्चन शायद ये था कि वो कॉर्पोरेट डेटर में ही एम्प्लॉयड है, कंपनी टू बी वाउंड अप में एम्प्लॉयड है, और वो अदरवाइज एलिजिबल टू एक्ट एज ए आईपी है. तो नहीं नहीं कैन नहीं ही? नहीं, वो कैसे बनेगा? एम्प्लॉय भी हो गया, वो तो कॉर्पोरेट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना एक किस्म से. वो एक तरफ लिक्विडेटर बैठेगा, दूसरी तरफ स्टेक होल्डर्स बैठेंगे. कॉर्पोरेट मैं पर्सन स्टेक होल्डर हो गया ना. मैं अगर अपने क्वेश्चन को दूसरे तरीके से डाल दूं कि अगर मेरा कोई, मैं इंडिपेंडेंट हूं कॉर्पोरेट पर्सन से और मैं एम्प्लॉय हूं एक आईपीई का, तो क्या मैं लिक्विडेटर बन सकता हूं? नहीं, देखिए ऐसा है, आईपीई के आप एम्प्लॉय हैं, पर इसमें थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा. आईपीई का उस कॉर्पोरेट पर्सन से कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं है ना. राइट. अगर आईपीई का कोई कनेक्शन नहीं है तो क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते. फिर तो कोई हाँ बात मुझे ही नहीं. हाँ मुझे कोई रोक नहीं सकता, इसका मतलब. फिर तो क्यों रोकेगा वो तो ठीक. देखो बेसिकली रीजन क्या है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. हाँ, ठीक कॉन्फ्लिक्ट है. ऑफ इंटरेस्ट कब होगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होगा जब रिलेटेड होगा. अब वो रिलेटेड होगा. अगर रिलेटेड नहीं है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. और ठीक. रिलेटेड है या नहीं है, इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए. और इंडिपेंडेंट के लिए क्राइटेरिया दे दिए कि अगर हमें उस आदमी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होता एज पर सेक्शन 149, तो क्या हम अपॉइंट कर सकते थे? उस आदमी को इन क्राइटेरिया पर जज किया जाएगा. दूसरा, रिलेटेड पार्टी नहीं है कॉर्पोरेट पर्सन का, एम्प्लॉय प्रोपराइटर या पार्टनर नहीं है, ऑडिटर सेक्रेटरी ऑडिटर या कॉस्ट ऑडिटर्स का, या लीगल और कंसल्टिंग फर्म जिसमें 10% से ज्यादा मिल रही है. ठीक, सिंपल सी बात है. तो इन क्राइटेरिया में अगर फिट नहीं होता तो इंडिपेंडेंट है. राइट सर. An insolvency professional shall not be eligible to be appointed as a liquidator if he or the insolvency professional entity of which he is a partner or director is under a restraint order of the board. अगर बोर्ड से कोई रिस्ट्रेंट ऑर्डर आ गया कि भाई आप 6 महीने साल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस केस. ठीक है. A liquidator shall disclose the existence of any pecuniary or personal relationship with the concerned corporate person. चाहे फाइनेंशियल रिलेशनशिप हो या पर्सनल रिलेशनशिप हो, or any of its stakeholders as soon as he becomes aware of it to the board and the registrar. अब देखिए दो बातें. ये क्या कह रहा है कि आपकी कोई पेक्यूनरी या पर्सनल रिलेशनशिप है किसके साथ? कंसर्न्ड कॉर्पोरेट पर्सन के साथ या एनी ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स. Stakeholders. तो आपको बताना है टू द बोर्ड एंड द रजिस्ट्रार. An insolvency professional shall not continue as a liquidator if the IPE of which is a director or partner represents any other stakeholder in the same liquidation. ठीक. Liquidators remuneration, ये जो लिक्विडेटर की रिमुनरेशन है, इट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन कॉस्ट. रिपोर्टिंग क्या क्या करनी है? रिपोर्टिंग क्या क्या करनी है इससे पहले ये बताइए कि रिपोर्टिंग करनी किसको है? रिपोर्ट आप किसको करते हो? जो आपको अपॉइंट करता है. अपॉइंट आपको किसने किया है? कॉर्पोरेट. Corporate Members. person. तो बस आपको रिपोर्टिंग भी कॉर्पोरेट पर्सन को करनी है. The liquidator shall prepare and submit
preliminary report, status report, minutes of consultation with stakeholders, and final report in the manner specified under these regulations. Subject to other provisions of these regulations, the liquidator shall make the reports and minutes referred to sub-regulation 1 available to a stakeholder in either electronic or physical form on receipt of an application in writing. Cost of making such reports available. दो बातें, एक राइटिंग में रिक्वेस्ट करेगा और दूसरा कॉस्ट जो है फोटोकॉपी वगैरह के चार्जेस दे देगा और एक अंडरटेकिंग दे देगा रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी. ठीक है. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट किसको सबमिट कर रहा है? कॉर्पोरेट पर्सन विद इन 45 डेज फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट. अभी तक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का नाम नहीं आया है ना. वॉलंटरी लिक्विडेशन स्टार्ट हो गई, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी दे दी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नहीं दी. अभी तक किस दो आदमी किसको पता है? एक बोर्ड को और दूसरा रजिस्ट्रार. हाँ, रजिस्ट्रार. ठीक है. द लिक्विडेटर शैल सबमिट ए प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टू द कॉर्पोरेट पर्सन विद इन 45 डेज फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट. 45 डेज में इसको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देनी है. ठीक है. क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर, estimate of its assets and liabilities as on the liquidation commencement date based on the books of the corporate person. Provided that अगर उसको लगता है कि books are not reliable तो फिर otherwise available records के basis पर वो बना देगा. ठीक है. एक और बात, उसको लग रहा है कि कोई गड़बड़ है क्या कंपनी में, whether he intends to make any further inquiry, तो इसी स्टेज में बता देगा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ही कॉर्पोरेट पर्सन whether he intends to make any further inquiry into any matter relating to the promotion, formation, or failure of the corporate person or the conduct of the business there. And the proposed plan of action for carrying out the liquidation, including the timelines within which he proposes to carry it out and the estimated liquidation cost. ठीक है. तो ये सारी बातें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में बता देना. सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर इसी रिपोर्ट में ही वो बता रहा है कि इंटेंशन डिफ्रॉड करने की है मान लीजिए, और यहाँ पर उसको कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही जो उसने, इंटेंशन नहीं है. नहीं, इंटेंशन की यहाँ नहीं है. यहाँ क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि प्रमोशन में कुछ गड़बड़ थी या फॉर्मेशन में थी या फेलियर ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन और द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस तेरा. मतलब देखो होता क्या है, एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी में चेंज हैंड्स है ना. तो जब कंपनी शुरू हुई तो प्रमोटर अलग थे, उन्होंने कोई फ्रॉड किया, दूसरों ने कंपनी खरीद ली उससे. अब ये वाले नए जो है ये वॉलंटरी लिक्विडेशन कर रहे हैं. ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है. तो ये जो जरूरी नहीं है कि इन्होंने ही फ्रॉड किया, हो सकता प्रमोशन से रिलेटेड फ्रॉड है या फॉर्मेशन से या फेलियर ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन और द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस दे रहा हो. या तो उसने बिजनेस सही नहीं चलाया या फेलियर हुआ कॉर्पोरेट पर्सन या प्रमोशन या फॉर्मेशन. दो अलग अलग बातें. वो बात आगे आएगी हमारी कि अगर उसको लगता है कि इट इज बीइंग डन टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, उसमें वॉलंटरी लिक्विडेशन की कमेंसमेंट से रिलेटेड है. ये एक्टिविटी पहले हो चुकी है, ये उसकी बात कर रहा है. ओके. दोनों बातों में फर्क है. वो क्या है कि वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंस करने का ही इंटेंशन फ्रॉडुलेंट है, वो वहां पर बताएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. यहां पर क्या है, यहां यह है कि कंपनी के प्रमोशन में या फॉर्मेशन में या फेलियर हुआ कॉर्पोरेट पर्सन का या कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. ठीक है. प्रपोज्ड प्लान ऑफ एक्शन फॉर कैरिंग आउट द लिक्विडेशन इंक्लूडिंग द टाइमलाइन विद इन विच ही प्रपोजेस टू कैरी इट आउट एंड द एस्टिमेटेड लिक्विडेशन कॉस्ट्स. ठीक है. उसके बाद में रजिस्टर्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये रजिस्टर आपको रखने हैं. ठीक है. कितना पीरियड है? लिखा है विद ऑल कन्वीनियंट स्पीड where the books of account of the corporate person are incomplete on the liquidation commencement date, the liquidator shall have them completed and brought up to date with all convenient speed. ठीक है. ये सारे रजिस्टर इसको रखने हैं. रजिस्टर ऑफ unclaimed dividends and undistributed proceeds and such other books or registers as may be necessary to account for transactions entered into by him in relation to the corporate person. ठीक है. The liquidator shall keep receipts for all payments made or expenses incurred by him. उसके बाद में engagement of professionals.
ये प्रोफेशनल्स को एंगेज कर सकता है टू असिस्ट हिम इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज obligations and functions for a reasonable remuneration and such remuneration shall form part of the liquidation cost. अब एक और हमें बात यहाँ खटक रही है थोड़ी थोड़ी कि यहाँ पर कोई स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी की बात नहीं कर रहा है ना। जैसे लिक्विडेशन में तो होता है ना भाई स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी बनानी है, यहाँ तो कुछ बात ही नहीं करी जी। यहाँ क्या बात कर रहा है, कॉर्पोरेट पर्सन। कॉर्पोरेट पर्सन ही सब कुछ है, उसी को बता रहा है सब कुछ। अगर वो खुद ही गड़बड़ कर रहा है कॉर्पोरेट पर्सन तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बता देगा, बस ये। ठीक है, एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल लिक्विडेटर। सर फिर इसमें लिक्विडेशन कॉस्ट कौन अप्रूव करेगा, कैसे रेटिफाई होगी? कॉर्पोरेट पर्सन करेगा ना। ओके सर। कॉर्पोरेट पर्सन ही तो अपॉइंटमेंट है, रिप्लेसमेंट सब कॉर्पोरेट पर्सन के पास पावर है। कॉर्पोरेट पर्सन मतलब मेंबर्स ऑफ द कंपनी। भाई कंपनी जिंदा है, वो कंपनी की रेजोल्यूशन करेंगे, उसमें अप्रूव करेंगे। ठीक है। भाई कॉर्पोरेट पर्सन कौन है, कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मेंबर्स। तो जब भी कोई चीज अप्रूव करनी होगी मेंबर्स की मीटिंग बुलाएंगे। A liquidator may engage professionals to assist him in the discharge of his duties, obligations, and functions for a reasonable remuneration, and such remuneration shall form part of the liquidation cost. The liquidator. हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, आप कह रहे हैं कि ये अभी रिपोर्टिंग करता है कॉर्पोरेट पर्सन को, तो इसका मतलब है कि वो कोई एडवर्स रिपोर्ट नहीं दे सकता। एडवर्स रिपोर्ट देगा तो उसके पैसे रुक जाएंगे। नहीं, बात वो नहीं है। देखिए ऐसा है, एडवर्स अगर उसको लगता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास तो जा ही सकता ना वो। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाने से उसको अपनी फीस मिल जाएगी, और जो प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए उसने उसके पैसे मिल जाएंगे उसको, क्योंकि ये तो उसका कॉस्ट है, लिक्विडेशन कॉस्ट है ना, जो ये सारा खर्चा तो वो कॉस्ट में डाल रहा है। नहीं, वो देखो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो कॉर्पोरेट पर्सन को कह ही सकती है ना अगर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है तो। ओके, मतलब इस तरीके का कोई डिस्प्यूट भी हो सकता है ना, वो चाहेगा तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, और तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, वो नॉर्मली देखो ऐसी कंपनी होती है जिसमें कुछ होता ही नहीं है, उन्होंने खाली कंपनी बंद करनी होती है। देखो कंपनी का जैसे बर्थ होता है ऐसे डेथ भी तो होती है ना, तो डिसोल्यूशन होता है कंपनी का। बिना डिसॉल्व किए तो कंपनी चलती रहेगी, उसकी फाइलिंग फीस देते रहेंगे, ऑडिट करवाते रहो। तो इसलिए क्या करते हैं भाई, कंपनी में सब कुछ खत्म हो गया, जिस पर्पज से कंपनी बनाई थी वो पर्पज ही ओवर हो गया, तो डिसॉल्व कर दो उसको। डेट क्रेडिटर कोई है नहीं तो बस, या क्रेडिटर है तो उसको पैसे दे के खत्म करो। ये है नॉर्मली। तो ये प्रोसेस ही तब शुरू करते हैं पेमेंट करने के बाद। पेमेंट करने के बाद किसी की कोई स्टेक ही नहीं है, क्रेडिटर कोई है ही नहीं कंपनी में, जो कुछ भी है शेयर होल्डर का ही है, तो उसी तरह से करते हैं नॉर्मल। राइट जी। Engagement of professionals. A liquidator may engage professionals to assist him in the discharge of his duties, obligations, and functions for a reasonable remuneration, and such remuneration shall form part of the liquidation cost. The liquidator shall not engage a professional under sub-regulation 1 who is his relative, ठीक है, a related party of the corporate person. आपने एक और पॉइंट नोट किया, यहाँ बार बार कॉर्पोरेट पर्सन बोल रहा है, कॉर्पोरेट डेटर नहीं बोल रहा है ना जी। तो कॉर्पोरेट पर्सन और कॉर्पोरेट डेटर एक ही बात है या कोई फर्क है? अलग बात है सर। क्या फर्क है? क्योंकि वॉलंटरी लिक्विडेशन में ये मैंडेटरी कंडीशन ही नहीं है कि डेट होना चाहिए। हाँ, तो जो जिसका डेट नहीं होगा तो वो तो कॉर्पोरेट पर्सन हो गया, और जिसका डेट होगा वो सिटी होगा। तो डेट नहीं होना चाहिए ना। यही रीजन है। नहीं, यहाँ भी डेट तो हो ही सकता है ना, वॉलंटरी लिक्विडेशन में भी तो डेट होता ही है। हाँ जी, बट मैंडेटरी तो नहीं है ना। हाँ, नहीं अगर डेट होगा तो फिर कह दो, फिर कॉर्पोरेट डेटर बोल दो, ऐसा तो नहीं। वही मैं भी वही कॉर्पोरेट कह रहा पर्सन ही बोल रहा है, यहाँ कहीं भी कॉर्पोरेट डेटर वर्ड यूज नहीं किया है इन्होंने। हाँ, है ना। चलिए, कंसल्टेशन विद, अच्छा ये एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स क्या क्या है? अगर उसका रिलेटिव है, लिक्विडेटर का रिलेटिव नहीं हो सकता, रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन नहीं हो सकता, और हैज सर्व्ड एज एन ऑडिटर टू द कॉर्पोरेट पर्सन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 5 years प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, या पिछले 5 साल में ऑडिटर रहा है तो भी वो फिर प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर उसका कोई पेक्यूनरी या पर्सनल रिलेशनशिप है तो वो भी उसको डिस्क्लोज करना। कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स। मेरा एक डाउट है सर। हाँ प्लीज। सर अगर 2 प्रोफेशनल्स रिलेटेड पार्टी हो उस केस में क्या होगा?
दो नहीं, वो तो क्या है, वो तो इंडिपेंडेंट है ना। मतलब आपका मतलब ये हो गया, एक कंपनी में दो भाई काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं काम कर सकते? वो तो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। मतलब ये कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को क्या लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकता है? द आंसर इज यस। भाई वो तो सर दो एम्प्लॉय हो गए वैल्यूअर ना। अपॉइंट करें, दो है जी। वैल्यूअर अपॉइंट, सर किसी एक पर्टिकुलर असेट कैटेगरी के लिए दो वैल्यूअर अपॉइंट किए गए। नहीं, वैल्यूअर तो देखो प्रोफेशनल है, वैल्यूअर की अलग हाँ बात है। हाँ, प्रोफेशनल के लिए पूछ रही हूँ मैं। और अपॉइंटमेंट के बाद ये पता चला कि दोनों वैल्यूअर रिलेटेड पर्सन है, तो उस केस में सर फिर एक वैल्यूअर को हटाना होगा या उन दोनों वैल्यूअर के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं? सपोज दोनों वैल्यूअर फादर एंड सन है, ये अपॉइंटमेंट के बाद देखो पता जी, चला, ऐसा है, वैल्यूएशन इसमें जो क्या है ना, होगा? वैल्यूएशन तो क्या हो रहा है, हाँ वैल्यूएशन एक ही चीज का हो रहा है। तो हाँ, वैल्यूएशन में तो इंडिपेंडेंट वो आ, चाह रहा है। अब दो हाँ वैल्यूअर तो एक अगर रिलेटेड है फिर तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दोनों दोनों का पर इंडिपेंडेंट। उनका उनका जो रिलेटेड स्टेटस है वो सर सीडी से या आरपी से नहीं देखना, लिक्विडेटर या आरपी जो भी है। तो हो ही गया ना, वो रिलेटेड ही हो गया ना एकदम से भाई, दोनों एक नहीं, दोनों उनका ये ही। कह रहे हैं जो आपस में रिलेटेड है सर, वो मैं दोनों समझ गया वाले। आपकी बात, हाँ वैल्यूअर में नहीं चल पाएगा, वैल्यूअर में नहीं हो पाएगा बात ये। नहीं हो पाएगा। प्रोफेशनल में हो सकती है, वैल्यूअर में नहीं हो सकती। वैल्यूअर वैल्यूएशन दोनों को इंडिपेंडेंट देनी है ना, अगर वो दोनों रिलेटेड है तो मिल भी सकते हैं ना आपस में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। वो तो अच्छा। कहता है दोनों पर को ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या सर? है। ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? ऐसा ऐसा एक्चुअली लिखे हुए प्रैक्टिकली के कल तो मेरे साथ आपको हुआ है, इसीलिए पूछ वैल्यूएशन रही हूँ। रूल्स में जाना होगा, वैल्यूएशन रूल्स में मिल जाएगा इसका। वैल्यूएशन रूल्स भी हमारे सिलेबस में है। ओ- हाँ, ओ- वैसे भी क्योंकि सर वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से वैल्यूएशन करना है ना आपको। ठीक। हाँ जी। मेंबर्स जो हैं वो यही तो बात पॉइंट आउट करेंगे कि अगर ये प्रोफेशनल्स रिलेटेड है आपस में या वैल्यूअर्स रिलेटेड है, तो उसका खर्चा क्यों डालेंगे वो इस कॉस्ट में? अगर वो रिलेटेड है तो उनको पता है कि ये मिलके काम कर रहे हैं और या एक ही कर नहीं रहे नहीं, हैं। बात वो नहीं है। देखिए, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक प्रोफेशनल है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और एक इंजीनियर है, दोनों भाई हैं। तो क्या लिक्विडेटर उनको अपॉइंट कर सकता है? ध्यान सर से वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर सकते हो हाँ, भाई। वो वहाँ अप है। वहाँ हो सकता है। हाँ वही ना, वो देखना पड़ेगा ना। वैल्यूएशन में थोड़ा सा अलग चीज है। तो वैल्यूएशन ये में तो दो। डिस्क्लोज करने की लाइबिलिटी वैल्यूअर के ऊपर होनी चाहिए ना। किसके? हमने दो वैल्यूअर को अपॉइंट किया, हाँ, तो ये लाइबिलिटी उन पे होनी चाहिए ना कि वो डिस्क्लोज करे कि दूसरे वैल्यूअर के साथ वो तो काम नहीं डिस्क्लोज करता ही है, वो तो डिस्क्लोज करता ही है। वो तो बताया ना, वैल्यूएशन रूल्स और वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो वहां उसका आंसर मिल जाएगा हमारा। तो वो रिलेशनशिप डिस्क्लोजर तो देने ही होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स, द स्टेक होल्डर्स कंसल्टेड अंडर सर सेक्शन 30। रिलेशनशिप डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट डेटर देने होते हैं। अदर प्रोफेशनल कौन एंगेज कर रखा है वो तो मुझे पता भी नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ? नहीं, वैल्यूएशन में तो पता ही है ना उसको, जब दो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर अपॉइंट हो रहे हैं तो So, वैल्यूएशन sir, में तो पता है। how do one valuer will know that who is the other valuer? He cannot ask the company whether you have employed another valuer also, and if employed, give me his detail. So नहीं, in अगर उसका so भाई right, है तो pता नहीं चलेगा उसको। sir, how they will know? How they will know? Is they are always discussing what the assignment I am getting? अरे सर जी, नहीं ऐसा नहीं। देखो ऐसा है, मान लो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ दोनों वैल्यूअर हो सकते हैं। द आंसर इज यस। भाई दोनों ने वैल्यूएशन का एग्जाम पास कर रखा, दोनों रजिस्टर्ड वैल्यूअर है। तो क्वेश्चन But ये है, एक ही कंपनी में दोनों हस्बैंड वाइफ को अपॉइंट कर लोगे क्या? द आंसर इज नो। सर हमने कर लिया एक कंपनी है में, जी। फादर और सन थे, दोनों को अपॉइंट कर लिया। अपॉइंट किया है तो कोई कंप्लेंट कर तो देगा हमने तो एक कंपनी में फादर और कंप्लेंट सन कर देगा दोनों ना को तो कर लिया। कम उनके तो वैल्यूएशन वालों पे तो सर ये वो कह देते। हमें, हाँ वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया तो वैल्यूअर को फीस वापस करनी पड़ती है और पेनल्टी और लग जाती है। वैल्यूएशन स्टैंडर्ड रूल्स में लिखा हुआ है ये बात। अगर आपने हस्बैंड और और सर इसमें फादर से आरपी नहीं की कर क्या लिया। लाइबिलिटी होगी? है जी। क्या? आरपी की क्या लाइबिलिटी होगी? आरपी को पता ही नहीं है कि दोनों रिलेटेड पर्सन है, दोनों को अपॉइंट कर लिया।
हाँ तो वो तो वैल्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ना, वैल्यूअर के लिए उसमें क्या पेनल्टी है। एक्सप्लेन होना चाहिए? हाँ, एक्सटॉर्शनेट ये हो गया। The stakeholder consulted under section 35(2) shall extend all assistance and cooperation to the liquidator to complete the liquidation of the corporate person. The liquidator shall maintain the particulars of any consultation with the stakeholders made under this regulation. ठीक है। एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वो आप वैल्यूएशन रूल्स पढ़ोगे ना मैडम, उसमें सब लिखा हुआ है, कंपनीज वैल्यूएशन स्टैंडर्ड रूल्स हैं। एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, a transaction shall be considered an extortionate credit transaction under section 50 subsection 2 where the terms require the corporate person to make exorbitant payments are unconscionable under the principles of law relating to contracts. ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट आपको करनी है फॉर्म ए ऑफ शेड्यूल 1 विद इन 5 days of his अपॉइंटमेंट। ठीक है। और पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या होगा, इट शेल कॉल अपॉन दी stakeholders to submit their claims as on the liquidation commencement date and provide the last date for submission of claims which shall be 30 days from the liquidation commencement date. ठीक है। और ये करने का है वही 1 English और 1 regional language newspaper with wide circulation on the website of the corporate person, on the website if any designated by the board. ठीक है। चलिए, पब्लिक अनाउंसमेंट भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पता नहीं है कि पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई है। ठीक है। प्रूफ ऑफ क्लेम, ए पर्सन हु क्लेम्स टू बी अ स्टेक होल्डर शैल प्रूव हिज क्लेम फॉर डेट और ड्यूज टू हिम। डेट और ड्यूज में क्या फर्क है, खाली डेट ही लिख देता, ड्यूज क्यों लिख दिया? Use is operational creditor, sir. और डेट ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं होता? Sir, dues which have not become debt. राइट। Dues तो are the small payment, sir. Dues मतलब ना नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ड्यूज मतलब यू हैव टू रिसीव सम मनी फ्रॉम द कंपनी, कुछ भी हो सकता है। डेट मतलब ये है कि इट कुड बी ए फाइनेंशियल डेट की तो डेफिनेशन है ना, ड्यूज की तो डेफिनेशन नहीं दे रखी, आईबीसी में दे रखी है नहीं, यहां से उल्टा डेट की उनको आगे डेफिनेशन का दे, है। डेट है आपका फाइनेंशियल या ऑपरेशनल डेट, है ना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इफ एनी एज ऑन द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। अब क्या लिखा है, ए पर्सन हु क्लेम्स टू बी अ स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर में, स्टेक होल्डर की डेफिनेशन आप देखो, स्टेक होल्डर की डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन है, स्टेक होल्डर्स एंटाइटल्ड टू प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ लिक्विडेशन एसेट्स अंडर सेक्शन 53। तो 53 में जो भी एंटाइटल्ड हैं वो आपके स्टेक होल्डर्स। ठीक है। चलिए, क्लेम्स बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ए पर्सन क्लेमिंग टू बी एन ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये क्लेमिंग टू बी का क्या मतलब है? क्लेमिंग टू बी पर ये केस है हमारे कोर्स में, ये सिलेबस में है। क्लेमिंग का मतलब ये है कि वो क्लेम कर रहा है ऑपरेशनल क्रेडिटर, हो सकता है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर ना हो सकता है वो फाइनेंशियल हो या वो अदर क्रेडिटर हो। क्लेमिंग टू बी, और देखना किसको है, लिक्विडेटर को देखना है कि वो क्या क्रेडिटर है, कौन सा क्रेडिटर है। ये क्लेम कर रहा है कि मैं ऑपरेशनल क्रेडिटर हूं, है या नहीं, लिक्विडेटर विल सी। ए पर्सन क्लेमिंग टू बी एन ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन अदर देन ए वर्कमैन और एम्प्लॉय, तो ये फॉर्म बी के अंदर। ठीक है। बाकी तो सारी चीजें पढ़ी हुई हैं हमने, है ना, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट देगा या ऑर्डर ऑफ कोर्ट या ट्रिब्यूनल, ये सारे जो भी मतलब उसको क्लेम करना। क्लेम्स बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए फॉर्म सी। और उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होगा, कोई लोन एग्रीमेंट होगा, है ना, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी दे देगा, ये सब चीजें होंगी और क्या। वर्कमैन एम्प्लॉयज, वर्कमैन एम्प्लॉयज में फॉर्म डी। ठीक है। उसके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई रिकॉर्ड होगा, है ना, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का, या नोटिस डिमांडिंग पेमेंट ऑफ अनड्यू अमाउंट, ये सारी चीजें होंगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई क्लेम नहीं करता है तो, ठीक है, भाई कंपनी बंद हो गई, एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चला पब्लिक अनाउंसमेंट का, तो क्या था, लिक्विडेटर को पावर दे रखी है, द लिक्विडेटर शैल एडमिट द क्लेम्स ऑफ ए वर्कमैन और एन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन इफ सच वर्कमैन और एम्प्लॉय हैज नॉट मेड अ क्लेम। तो अगर उसने कोई क्लेम नहीं किया तो बुक्स के बेसिस पर भी आप क्लेम ले सकते हो। ठीक है। Is it only, sir, is it only for workman employee or for the other also?
बस खाली वर्कमैन एम्प्लॉय का यहीं पर लिखा, बाकियों में नहीं लिखा। क्लेम्स बाई अदर स्टेक होल्डर्स, अगर कोई दूसरा स्टेक होल्डर है तो, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्म एफ है। अच्छा एक और बात बता दो, क्या शेयर होल्डर भी अपना क्लेम फाइल करेगा? करना तो चाहिए, Yes. क्योंकि एक तो बात वो All स्टेक remaining होल्डर है, is for the shareholders. और दूसरा ये भी लिखा है डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऑफ हिज शेयर होल्डिंग, है ना। तो अगर उसके पास कोई शेयर होल्डिंग है तो उसका भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देगा वो, और एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी, ठीक है। सर ये शेयर होल्डर ही कॉन्ट्रीब्यूटरी होता ना जी, हाँ, तो फिर वो तो लेता भी तो है वो, हाँ जी, हाँ जी, 53 में मिलता भी तो है उसको। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन क्या दिया उसने? स्टेक होल्डर दिया कि जिसको 53 में कुछ मिलना है वो स्टेक होल्डर है। तो शेयर होल्डर क्या स्टेक होल्डर है या नहीं है? द आंसर इज यस। यस। और यहां पर भी लिख दिया डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऑफ हिज शेयर होल्डिंग। तो जब डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे रहा है शेयर होल्डिंग का, क्या मतलब है? वही ना, अपनी शेयर होल्डिंग ही तो बता रहा है, और क्या बता रहा है वो। बाकी अगर आप फॉर्म एफ देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। प्रूविंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट, the existence of a security interest may be proved by a secured creditor on the basis of records, certificate of registration, proof of registration, ठीक है। तो ये अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो वो ये सारा अपना दे देगा। प्रोडक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। अब आप ये बताइए कि ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, अब इसके बारे में क्या ये अपने एसेट्स खुद बेच सकता है? क्या पोजीशन होगी वॉलेटरी लिक्विडेशन? क्योंकि 33 34 तो यहां काम नहीं आ रहे। उसने क्या कह दिया कि लिक्विडेशन वाले सेक्शन आप 35 से देखोगे, है ना। और वो राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर आपको कहां दे रखे हैं? 33 में, है ना। चलिए आगे चलते। प्रोडक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स, वेयर ए पर्सन सीक्स टू प्रूव ए डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, promissory note or other negotiable instrument or security of a like nature for which corporate person is liable, तो ये भी आपको क्लेम देना। अच्छा ऐसा है, एक स्टूडेंट के लिए मुझे कल एक क्लास करनी है सुबह, CIRP वाली रिवीजन क्लास होगी। तो आप में से भी जो अटेंड करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है जी। लिंक भेज सुबह होगी दीजिएगा। क्लास 8 बजे से 10 बजे तक। लिंक भेज दीजिएगा हाँ लिंक सर। भेज दूंगा मैं, हाँ, अगर आपका किसी का इंटरेस्ट है CIRP वाला रिवीजन करने में तो वो भी अटेंड कर सकते, ठीक है। सब्सटेंशिएशन ऑफ क्लेम्स, द लिक्विडेटर मे कॉल फॉर सच अदर एविडेंस और क्लैरिफिकेशन, जो भी मांगना चाहे मांग सकता है। कॉस्ट ऑफ प्रूफ, जो भी क्लेमेंट है शैल बियर द कॉस्ट ऑफ प्रूविंग इट्स क्लेम। कॉस्ट इनकर्ड बाय द लिक्विडेटर फॉर वेरिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेम शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन। अगर लिक्विडेटर ने वेरीफाई किया तो लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और अगर क्लेम फॉल्स है तो फिर क्या करेगा? उससे रिकवर करने की कोशिश करेगा, और इस जो क्लेमेंट है उसकी डिटेल्स बोर्ड को दे दे। डिटर्मिनेशन, अगर प्रिसाइज नहीं है तो रीजनेबल एस्टिमेट कर लेगा। डेट्स फॉरेन करेंसी में है तो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट, पीरियोडिकल है तो अप टू द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, डेट्स पेबल एट फ्यूचर टाइम है तो उसके लिए फार्मूला है ना, एक्स डिवाइडेड बाई 1 + r रेज टू द पावर n। वो सारा CIRP लिक्विडेशन सब में सेम ही है। म्यूचुअल क्रेडिट सेट ऑफ है, अलाउड है। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, वेरिफिकेशन कितने दिन में करना है? 30 डेज। यस। और फिर वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर रिजेक्ट करेंगे तो क्या, वही सेक्शन 42 में जाएंगे। 42 क्या बोलता है कि 14 डेज में आप अप्लाई कर सकते हो, अपील कर सकते हो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो यहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास बंदा पहुंच जाएगा, क्रेडिटर, ठीक है। अगर लिक्विडेटर ने उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो एक सिचुएशन कौन सी आ गई कि इसका क्लेम रिजेक्ट हो गया वॉलंटरी लिक्विडेशन में, तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। सेकंड सिचुएशन क्या है? अगर उसको लगता है कि ये जो वॉलंटरी लिक्विडेशन ही फ्रॉड की वजह से किया गया है तो फिर लिक्विडेटर एप्लीकेशन लगा देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, है ना। और लास्ट में तो जानी है उसके पास एप्लीकेशन जब पूरा फाइनल रिपोर्ट जा रही है। लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स,
द लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब यहां देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये नहीं लिखा कि आपको स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी बनानी है। इसने क्या किया, लिस्ट बनाई ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ्स ऑफ क्लेम सबमिटेड एंड एक्सेप्टेड अंडर दीज रेगुलेशंस, अमाउंट क्लेम एडमिटेड, डेट अगर सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, डिटेल्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड प्रूफ्स एडमिटेड और रिजेक्टेड इन पार्ट एंड द प्रूफ्स होली रिजेक्टेड। ठीक है, और कितने दिन में बनानी है, विद इन 45 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स। मतलब 30 डेज में क्लेम रिसीव करने, 30 डेज में वेरिफिकेशन है, और 45 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ क्लेम, मतलब 15 दिन उसको मिल गए प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, चलिए। Provided that where no claim from creditor has been received, अगर कोई क्लेम आया ही नहीं 30 दिन में, तो फिर लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स बनानी है विद इन 15 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर, क्योंकि वेरिफिकेशन तो करना ही नहीं, जब क्लेम ही नहीं आया तो वेरीफाई क्या करेगा, है ना। तो फिर यहाँ 15 डेज हो गया फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स। दोनों में वही है, यहां पर भी वही है, यहां पर 45 डेज दे दिया फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ, क्योंकि 30 डेज वेरिफिकेशन के, यहां वेरिफिकेशन करना ही नहीं क्योंकि कोई क्लेम ही नहीं आया, जब क्लेम ही नहीं आया तो वेरीफाई क्या करोगे आप। ठीक है, द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय द पर्सन्स हु सबमिटेड प्रूफ्स ऑफ क्लेम, available for inspection by members, partners, directors and guarantors of the corporate person, displayed on the website if any of the corporate person, displayed on the website if any designated by the board for this purpose। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स आपको ऐसे ऐसे लगानी है। मैनर ऑफ सेल, अब जब मैनर ऑफ सेल हम देख रहे थे लिक्विडेशन में, तो उसमें कई चीजें थी। उसमें कहा था सेल स्ट्रेटजी कौन डिसाइड करेगा, है ना। उसमें क्या था, सेल स्ट्रेटजी कौन डिसाइड कर रहा था, आपको सजेस्ट कर रही थी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी। आपने कोई प्राइवेट सेल करनी है, आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन चाहिए, है ना। यहाँ क्या है, यहाँ कौन डिसाइड कर रहा है, कॉर्पोरेट पर्सन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कोई रोल नहीं है। द लिक्विडेटर में वैल्यू एंड सेल द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन इन द मैनर एंड मोड अप्रूव्ड बाय द कॉर्पोरेट पर्सन इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस इफ एनी इन द एप्लीकेबल स्टैट्यूट। तो जो भी प्रोविजंस है उसके हिसाब से। एसेट्स इंक्लूड एन एसेट, ऑल एसेट्स, ए सेट ऑफ एसेट्स और पार्सल ऑफ एसेट्स एज द केस में भी इन रिलेशन टू सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, कोई गोइंग कंसर्न का फंडा नहीं, कोई स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी का फंडा नहीं, कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो लिक्विडेटर रिपोर्ट कर देगा, अगर गड़बड़ नहीं कर रहा तो कुछ फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कोई इसमें मतलब नहीं है, ना ही यहां पर कोई स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी है, सिर्फ एक लिस्ट है। ठीक है, रिकवरी ऑफ मनी ड्यू, द लिक्विडेटर शैल एंडेवर टू रिकवर एंड रियलाइज ऑल एसेट्स ऑफ एंड ड्यूज टू द कॉर्पोरेट पर्सन इन ए टाइम बाउंड मैनर फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द स्टेक होल्डर्स। प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स क्या कहता है, ऑल मनी टू बी पेड इनटू बैंक अकाउंट, सारे पैसे आपको कहां जमा कराने हैं, बैंक में, और उसके पीछे क्या लिख दिया जाएगा, XYZ लिमिटेड इन वॉलंटरी लिक्विडेशन इन ए शेड्यूल्ड बैंक फॉर द रिसीट ऑफ ऑल मनी ड्यू टू द कॉर्पोरेट पर्सन। जो भी आपके शेड्यूल्ड बैंक है उसमें आप जमा करा सकते। और शेड्यूल्ड बैंक क्या है, वो जो 45I में रिजर्व बैंक में सेकंड शेड्यूल दे रखा है, तो उस शेड्यूल में जो जो भी बैंक है उसमें आप जमा करा सकते। अगर वो कहेगा जी एक ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक में जमा करा सकते हो, द आंसर इज यस, क्योंकि वो भी आपका शेड्यूल्ड बैंक। द लिक्विडेटर शैल पे टू द क्रेडिट ऑफ द बैंक अकाउंट, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, तो आपको शेड्यूल्ड बैंक का भी मतलब पता होना चाहिए कि शेड्यूल्ड बैंक में क्या है। क्या वो फॉरेन बैंक में जमा करा सकता है, द आंसर इज यस, क्योंकि वो भी शेड्यूल्ड बैंक है। आप ये मत सोचो शेड्यूल्ड बैंक मतलब इंडियन बैंक ही होगा खाली, जिसका भी शेड्यूल में नाम है वो है शेड्यूल्ड बैंक। चलिए, द लिक्विडेटर शैल पे to the credit of the bank account opened under sub-regulation 1 all monies due including checks and demand drafts received by him as a liquidator of the corporate person
and the realization of each day shall be deposited into the bank account without any deduction not later than the next working day. जितने भी पैसे हैं सारे आपको जमा कराने हैं और रियलाइजेशन भी जितनी हुई वो भी आपको विदाउट एनी डिडक्शन जमा करानी है. मनी इन द क्रेडिट ऑफ द बैंक अकाउंट shall not be used except in accordance with section 53(1). तो 53(1) वाला काम यहां पर भी चलेगा. ठीक है. All payments out of the account by the liquidator above 5,000 rupees shall be made by checks drawn or online banking transactions against the bank. मतलब 5,000 से ऊपर जो है वो सारी चेक से पेमेंट होगी. Distribution. The liquidator shall distribute the proceeds from realization within 30 days from the receipt of the amount to the stakeholders. ठीक है. 30 डेज के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक. पहले ये था 6 months, अब ये हो गया 30 डेज. द लिक्विडेशन कॉस्ट shall be deducted before such distribution is made. And the liquidator may, with the approval of the corporate person, जैसे वहां पर कहीं ना, कहीं पे तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी था, कहीं पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी था, यहाँ अप्रूवल भी किससे लेनी है? कॉर्पोरेट पर्सन. Distribute amongst the stakeholders an asset that cannot be readily or advantageously sold due to its peculiar nature or other special circumstances. ठीक है. Return of money. A stakeholder shall forthwith return any monies received by him in distribution which he was not entitled to at the time of distribution or subsequently became not entitled. ठीक है. किसी को गलती से मिल गया, वापस कर दो. Completion of liquidation. The liquidator shall endeavor to complete the liquidation process of the corporate person and submit the final report under Regulation 38 within. दो इसमें टाइमलाइंस हैं. कौन कौन सी? एक तो है 270 दिन, 270 days, where the creditors have approved the resolution. इसका मतलब अगर क्रेडिटर हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन अप्रूव की है, तो आपको कितने दिन में कंप्लीट करना है? 270 days. And 90 days from the liquidation commencement date in all other cases. मतलब अगर क्रेडिटर है ही नहीं तो फिर 90 days. क्रेडिटर है तो 270 days, क्रेडिटर नहीं है 90 days. In the event of the liquidation process continuing for more than the period stipulated in sub regulation 1, अगर ये 270 दिन या 90 दिन से ज्यादा चल गया तो क्या होगा? the liquidator shall hold a meeting of the contributories of the corporate person within 15 days from the end of the 270 days or 90 days as the case may be. ठीक है. 270 या 90 दिन के 15 दिन के बाद में एक मीटिंग करेगा. And thereafter at the end of every succeeding 270 days or 90 days as the case may be. ठीक है. 270 दिन या 90 दिन के 15 दिन के अंदर या फिर अगले फिर 270 15 दिन के बाद, फिर इस तरह से चलता रहेगा जब तक वॉलंटरी लिक्विडेशन कंप्लीट नहीं होता. टिल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन एंड shall present an status report indicating progress in liquidation. एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देगा. क्या उसमें? सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, डिटेल्स ऑफ एनी एसेट्स दैट रिमेन टू बी सोल्ड एंड रियलाइज्ड. ठीक है. Distribution made to stakeholders, distribution of unsold assets made to the stakeholders, developments in any material litigation by or against the corporate person, filing of and development in application for avoidance transactions. ठीक है. And the reasons. ठीक है. The status report. Distribution of assets हाँ जी. to shareholders, stakeholders, is not considered as transfer, na, for the purpose of taxation and anything. हाँ नहीं, ये वाला कैपिटल गेन नहीं माना, कैपिटल गेन में नहीं आएगा ये. कैपिटल गेन नहीं लगता ना. नहीं. अगर किसी कंपनी के पास लैंड है और ओनर चाहते हैं लैंड को अपने नाम पे ले लें, तो दे जस्ट वॉलंटरी लिक्विडेट द कंपनी एंड ट्रांसफर द लैंड इन देयर पर्सनल नेम. हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है. विदाउट मेकिंग एनी टैक्स पेमेंट.
सिर्फ सेक्शन 237 पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट का। देखो And इनकम has टैक्स एक्ट अलग है। this way is used now. Many times when this voluntary liquidation is there, when a company owns an asset only, especially the real estate, and owners want that now they should own it in their personal name. So instead of buying that asset or transferring, they voluntarily liquidate the company. And तो मैं समझ गया आपकी बात, सिर्फ ये है कि हमें सेक्शन 237 देख लेना पड़ेगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 37। क्योंकि कई पंगे तो कई होते हैं। देखो ऐसा है कि आप रजिस्ट्रार के पास तो जाओगे, भाई अभी तो कंपनी के नाम थी प्रॉपर्टी, आपके नाम आएगी कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन में लिक्विडेटर क्या देगा आपको? रजिस्ट्रार में वो उस पर स्टैंप ड्यूटी बचा लेते हैं। रजिस्ट्रार में स्टैंप ड्यूटी बचा लेते हैं सर। ये और इसकी एंट्री उसमें नहीं आने देते जो सेल परचेज ऑफ एसेट्स है। तो कभी इनकम टैक्स ऑफिस को भी पता नहीं चलता कि आपने एसेट परचेज कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड एसेट्स में देखो आपको दो सेक्शन पढ़ने हैं, उसके लिए सेक्शन 45 और सेक्शन 2 सब सेक्शन 37। डेवलपमेंट्स इन एनी मटेरियल लिटिगेशन बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट पर्सन, फाइलिंग ऑफ एंड डेवलपमेंट इन एप्लीकेशंस फॉर अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस in accordance with chapter 3 of part 2 of the code. Reasons for not completing the process of liquidation within the stipulated time and additional time required. और ये जो स्टेटस रिपोर्ट है shall include the audited accounts of the liquidation showing the receipt and payment pertaining to liquidation since the liquidation commencement date. ठीक है। The liquidator shall file the status report with the board within 7 days of the meeting of the contributories. ठीक, तो इसको ये रिपोर्ट फाइल करनी है विद द बोर्ड। अब यहां पर आप नोट करोगे कि इसने कोई क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं लिखा, एक तो लिखा प्रिलिमिनरी और एक लिख दिया स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है, और एक ये है फाइनल रिपोर्ट आपकी। ठीक है, ये तो फाइनल रिपोर्ट है ना, जब कंप्लीशन हो गया तब ये दे रहा है। स्टेटस रिपोर्ट कब देना है? विद इन 7 days ऑफ द मीटिंग ऑफ द कंट्रीब्यूटरीज। देखिए दोनों बातों में फर्क है, एक है स्टेटस रिपोर्ट, एक है फाइनल रिपोर्ट। क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट जो है ना, वो क्या होगा, जब जब भी कोई कंट्रीब्यूटरीज डिसीजन लेंगे, उनकी मीटिंग होगी, उसके बाद में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगा। ठीक है, तो स्टेटस रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट दोनों एक ही चीज नहीं है ना। स्टेटस रिपोर्ट कब हो रही है? जब जब मीटिंग हो रही है कंट्रीब्यूटरीज की। और फाइनल रिपोर्ट क्या है? जब आपका लिक्विडेशन कंप्लीट हो गया तब। ठीक है, लेकिन कोई क्वार्टरली मैंडेट नहीं है, जैसे लिक्विडेशन में होता ना कि क्वार्टरली आपको फाइल करनी ही करनी है, ऐसा नहीं है यहाँ। ठीक है, द लिक्विडेटर shall submit the final report and the compliance certificate in form H along with the application under subsection 7 of section 59 to the adjudicating authority. उसके बाद में corporate voluntary liquidation account. Board shall maintain and operate an account to be called the corporate voluntary liquidation account with a scheduled bank. बोर्ड मेंटेन कर रहा है इसको, लिक्विडेटर नहीं मेंटेन कर रहा, ध्यान में रखो। क्योंकि यहां क्या है, लिक्विडेशन रिपोर्ट दी, फाइनल रिपोर्ट दे दिया, फाइनल रिपोर्ट में अगर कुछ बच गया, किसी ने क्लेम फाइल किया हुआ है, वो लेने आया ही नहीं, उसके बैंक अकाउंट में भी डाला, बैंक से वापस हो गया, तो वो पैसा कहां जाएगा? कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन, और फिर यहां से वो क्लेम कर लेगा। ठीक है, it is operated as part of the public accounts of India. The board shall open a separate bank account with a scheduled bank for the purpose of this regulation. ठीक है, और उसमें क्या जमा होगा? Amount of unclaimed dividends if any and undistributed proceeds if any in a liquidation process along with any income earned thereon till the date of deposit. ठीक है,
ये जब अमेंडमेंट आया उसके आपने 15 दिन के अंदर जमा कराना है। अगर आपने जमा नहीं कराया तो इंटरेस्ट लगेगा 12% का। ये इंटरेस्ट लिक्विडेटर खुद बियर करेगा, ठीक है। और ए लिक्विडेटर शेल सबमिट टू द अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट पर्सन इज रजिस्टर्ड एंड द बोर्ड। तो एमसीए और बोर्ड को ये बता देगा क्या, कि मैंने ये पैसा जमा करा दिया है यहां पर, ठीक है। और स्टेटमेंट दे देगा इन फॉर्म जी सेटिंग फॉर द नेचर ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट, और उनके नाम और एड्रेसेस दे देगा, ठीक है। और लिक्विडेटर शेल बी एंटाइटल्ड टू अ रिसीट, उसको रसीद मिल जाएगी बोर्ड से, ठीक है। अब ये है कि प्रायर टू द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, इसने फाइनल रिपोर्ट लगा दी, इसने पैसा यहां जमा करा दिया कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट में। अभी डिसोल्यूशन हुआ नहीं है, उससे पहले ही क्लेमेंट पहुंच गया, ठीक है। तो अगर उससे पहले ही पहुंच गया तो क्या होगा, वो लिक्विडेटर को अप्लाई करेगा इन फॉर्म आई फॉर विड्रॉल ऑफ द अमाउंट, ठीक। और लिक्विडेटर बोर्ड को रिक्वेस्ट करेगा फॉर रिलीज ऑफ अमाउंट, क्योंकि बोर्ड के पास है इसका कंट्रोल, तो है ना, कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट का कंट्रोल तो बोर्ड के पास है। लेकिन अगर डिसोल्यूशन नहीं हुआ तो क्लेमेंट किसके पास एप्लीकेशन लगाएगा, लिक्विडेटर के पास, है ना। और लिक्विडेटर वेरिफिकेशन के बाद में बोर्ड को रिक्वेस्ट करेगा। A liquidator shall, after making the distribution to the stakeholder, shall intimate the adjudicating authority of such distribution। यहां देखो, इसने यहां adjudicating authority भी आ गया, ठीक है। तो adjudicating authority का नाम कहीं कहीं सुन रहे हैं हम। तो जब इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसके बाद में इंटीमेट करेगा adjudicating authority को of such distribution। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन स्टेक होल्डर, अब डिसोल्यूशन हो गया, उसके बाद में क्लेमेंट आया, तो क्या होगा, फिर फॉर्म आई देगा वो बोर्ड को, फिर अब बोर्ड को अप्लाई करेगा, क्योंकि लिक्विडेटर तो पिक्चर से आउट हो गया, है ना। और मान लीजिए कोई दूसरा आदमी क्लेम करना चाह रहा है, मान लीजिए स्टेक होल्डर था, उसकी डेथ हो गई, उसका बेटा क्लेम करना चाह रहा है, तो वो एविडेंस देगा कि भाई ही इज सो एंटाइटल्ड। वो अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो देगा कि भाई ही इज एंटाइटल्ड, ठीक है। और बोर्ड को लगेगा कि ही इज एंटाइटल्ड तो वो अलाउ कर देगा विड्रॉ, है ना, इन दैट पर्सन। द बोर्ड शैल मेंटेन ए कॉर्पोरेट पर्सन वाइज लेजर, वो कॉर्पोरेट पर्सन वाइज लेजर बना देगा इसका ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारी कंपनियां डिपॉजिट कराएंगी, है ना, तो कंपनी वाइज लेजर बना देगा। द बोर्ड शैल नॉमिनेट एन ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज द कस्टोडियन एंड नो प्रोसीड्स शैल बी विथड्रॉन विदाउट हिज अप्रूवल। और बोर्ड क्या मेंटेन करेगा, प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट एंड गेट द सेम ऑडिटेड एनुअली, इनका ऑडिट भी कराएगा, ठीक है। The audit report, along with the statement of accounts of the corporate voluntary liquidation account, shall be placed before the governing board and shall be forwarded to the central government, ठीक है। और any amount which remains unclaimed for a period of 15 years, तो ये कहां चला जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ये भी इंपॉर्टेंट। अगला यहां पर फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आ गई। अगर इसको लगता है कि liquidation is being done to defraud a person, he will make an application to the adjudicating authority to suspend the process of liquidation and pass any such order as it deems fit. Where the liquidator is of the opinion that the corporate person will not be able to pay its debts in full from the proceeds of assets to be sold in liquidation, ठीक है। अब इसको क्या लग रहा है कि भैया इन्होंने वॉलंटरी लिक्विडेशन तो स्टार्ट कर दिया लेकिन ये सारे पैसे दे नहीं पाएंगे, तो फिर क्या करेगा, उस केस में भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ये एप्लीकेशन लगा देगा टू सस्पेंड द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन एंड पास एनी सच ऑर्डर एज इट डीम्स, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का नाम बहुत स्पेयरिंग सिचुएशंस में ही आ रहा है ना। उसको लगता है कि फ्रॉड हो रहा है तो कर देगा, या उसको लगता है पेमेंट नहीं कर पाएगा तो कर देगा, या फिर और कौन सी सिचुएशन थी, जब उसने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा, है ना। और उसके अलावा और कौन सी सिचुएशन थी, जो फाइनल जब उसका डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई करेगा तो एडजुडिकेट। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स कितने पीरियड के लिए रखने हैं आपको,
ये रखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रखनी है 8 ईयर्स के लिए और फिजिकल कॉपी रखनी है 3 ईयर्स। यस। ठीक है जी। और रिप्लेसमेंट अगर होगा तो जो पुराने वाला वो नए वाले को रिकॉर्ड दे देगा, सिंपल है, इसमें तो कोई खास बात नहीं है ना। ये यहां पर भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। द लिक्विडेटर शेल along with the application filed under subsection 7 of section 59 to the adjudicating authority provide the details and manner of preservation of records, कि उसने रिकॉर्ड कहां पर रखे ये भी बताएगा। ठीक है। फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, द लिक्विडेटर shall file the forms along with the enclosure thereto on an electronic platform, तो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर ये फॉर्म फाइल करेगा। ठीक, कौन कौन से फॉर्म है? ये फॉर्म है VL1, VL2, VL3, VL4। उसके बाद में फिर फॉर्म है पब्लिक अनाउंसमेंट वगैरह। तो ये फॉर्म आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी जब हम केस स्टडी करेंगे तो केस स्टडी में भी इनको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। ये टाइमलाइन भी इसने दे रखी है, टाइमलाइन उन्होंने बना रखी है उसके हिसाब से ही। ठीक है जी। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 8 बजे फिर मुलाकात होगी आपसे। ओके। बोलो श्री आर के गुप्ता जी की जय।